1489th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर्स ज्वेलर्स नागपुर's बेस्ट ज्वेलरी स्टोर presents Raj Ki Baat Women of the Year in association with Pehnava Boutique. Also a big thank you to Cuts the Salon, now a new salon at Shivaji Nagar. Also a big thank you to Mampi Reusable Diapers for Children and LIC बोले तो विनय साहू. मेरी आज की मेहमान जो है वो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है विद द IMA, विद द न्यू टीम ऑफ IMA. Also, she is a very proud Nagpurian, and when it comes to the health fraternity or the medical fraternity of Nagpur, herself and people from her family play a very important role. Let me introduce you to my Women of the Year, Dr. Ujjwala Gahukar ma'am. Ma'am, namaskar. नमस्कार मैम स्वागत आपका राज की बात. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू सो मच फॉर गिविंग आउट योर टाइम फॉर दिस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. मैम सबसे पहले वुड रियली लाइक टू नो द जर्नी ऑफ डॉक्टर उज्ज्वला फ्रॉम बिगिनिंग. Okay. जी. I've been born and brought up in Nagpur. All my schooling has been in Nagpur. I have done my graduation from NKP Sarve Institute of Medical Sciences and Research Center. Then I've done my post-graduation from Datta Maghi Institute of Medical Sciences and Research Center. I've done my second post-graduation from DNB from Patiala, Punjab. I chose to be a gynecologist. I wanted to be a surgeon, and gynecology was always the choice of my branch. And now I'm married to a doctor family. We have almost 18 doctors in our family. तो मैम आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बाहर तो जाते नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं जाते. दवाई घर में ही मिल जाती है. सब कुछ मिल जाता है. मैम बचपन से जब आप बड़ी हो रही थी तब किस किस्म के सपने थे? क्या बनना था, क्या करना था, या जो आप कर रही हैं वही करना था या कुछ और करना था? नहीं, बचपन से अगर मैं बताऊँ, वी आर 4 sisters and we have very proud parents. They were very proud of us. All of us are very good at academics. My elder sister is a software engineer. She is also working. The second one is a lawyer. I'm a doctor, and the fourth one is also a lawyer, software engineer, and now owns 2 software companies of her own in Pune. And so, being an educational background, my father being a bank officer, we were always into education, and I always aspired to become a doctor. But that to be gynecology or something else? Surgeon. A surgeon. A surgeon. Yeah. But at those times, it's been 20 years now, when I entered medical college, female surgeons were not very much in the profession. So, gynecology was the best option to become a surgeon. Probably that time was the only option. Yes, maybe. Ma'am, when it comes to the the medicine studies, when you look at it, so the study during when you were studying, when you were getting the best of knowledge, what was the graph of education that time, and now when you see the graph of education when it comes to medical sciences, how has it improved or it's not improved? It has improved. It has definitely improved. At our times, there were only books. And because the media, because the internet was not very friendly to the students, even the phones were not with us. So we were having only education which was available to us at local level. But when compared now, we have everything available on internet, and we can have global relationships also. Like we can contact with a global person. When I'm sitting here, and I can have my classes from, say, you can say America or North Korea or Japan. The advances are going on. Germany. And I can get my education through them also, which was not the same when I was studying. Ma'am, there have been a lot of attacks on specifically gynecologists in the past, what we have observed. Yeah, there was one thing which happened at Rajasthan also, where a doctor had to commit suicide and all. I mean, things went to that extent also. How do you look at these things, ma'am? It is said to be intolerance. That doctors are intolerant or the crowd is intolerant. But as doctor, I can tell you, one doctor has to cater at least 100 people in a day.
that makes to look for 3,000 people in a month. Right. And not every person coming to us will give us that kind of respect, or will come from that kind of society which can understand what the doctor is doing. And sometimes it is very difficult to make people understand what the situation is, especially my field, obstetrics. When it comes to childbirth, it is not only the patient is involved, it is the whole family involved. When it's the first pregnancy or the second pregnancy, whenever first pregnancy, everyone in both families are happy. Everyone wants to have this child, see the child. And if we are there to tell them, if these are kind of the problems, and they will go on doctor shopping, and they will see what all on the internet also, and they get half-baked information, to be very honest. जी. एंड देन व्हाट हैपेंस कि आपने तो ऐसे बताया था, नेट पे तो ऐसे दिया है, फिर अभी क्या प्रॉब्लम हो गई. सी विथ रीसेंट एडवांसेस हम जितना जल्दी हो सके बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जी. बट 100% हम रिजल्ट नहीं बता सकते हैं. इट इज़ नॉट दैट एडवांस. देयर आर चांसेस कि ऐसा हो सकता है, हम बताते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड बर्थ देयर आर वेरियस इशू. इफ द पेशेंट इज ब्लीडिंग, and the bleeding, I can tell you, like you cannot imagine what kind of bleeding, what kind of pain, what kind of anatomical, physiological changes the patient is going through during pregnancy and childbirth, and what we are supposed to take care of. So sometimes things go horrifically wrong, but that is not so कि वो डॉक्टर की प्रॉब्लम है या पेशेंट का प्रॉब्लम है. It is a situation जी. which many times we handle. 99% the situations are handled, but 1% unfortunate things happen, and then some intolerance occurs. Ma'am, with the best of the advancements in the medical fraternity, specifically when it comes to technology, technology advancements in medical fraternity. I mean, I should put it this way. Specifically, this 3 alphabet is bringing a lot of joy in a lot of people's life. Yes. IVF. Yes. How do you look at it? It's a wonderful boon. Wonderful. Recently, what is seen, late marriages, late childbearing. See, people should understand, a female is born with a particular amount of eggs in her ovaries, and the eggs get on decreasing by the time. Okay? Now when the female wants to have a career and wants to have late childbearing, like these days 35, having first child at 35 age, 40 age is very common. But you must also understand कि उस टाइम तक आपके एग्स भी कम हो जाते हैं, उनका क्वालिटी डिक्रीज हो जाता है, और फिर आपको उसको इम्प्रूव करने का कोई मेथड नहीं है. उसको आप कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते, ना उसका नंबर आप बढ़ा सकते हो. At this time, if you preserve your eggs at right age, when they are really healthy, by your 20s, before your 30s, and then you can have child whenever you want with those frozen eggs. So everything goes hand in hand in this modern era. You can have a healthy child with the help of IVF. Ma'am, when you were studying in Punjab, and you've also studied in Nagpur with the environment of Maharashtra, ma'am, what was the difference? The people I find very helpful, friendly, and foodie at a lot. So you said you don't get good food in Nagpur? No. It's quite, it's very good food. Very, especially the aubergine, बैंगन जो वांगा कहते हैं हम लोग, वो तो कहीं नहीं मिलता है विदर्भ का. सही बात. लेकिन पंजाब में वेरी फ्रेश फूड, और लोग सच में फूडी है. जैसे ही पेशेंट डिलीवर हो जाते, मैंने पराठा खिला दो जी. And the language is wonderful. Like whenever patient comes to us, अगर कोई patient follow-up के लिए नहीं आता यहाँ पर, तो हम पूछते हैं आप कहाँ गए थे, क्या हो गया था. And the moment I entered ward in residency for my residency in Punjab, तो the ma'am was there. She was asking कि तू तुरदी फिरदी आ. No, तुरदी फिरदी क्यों होता है? That way. Okay. So it's very nice. The people are warm, really warm. So, ma'am, life here, life there, which was better? Both. 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 Both are India, so yes, both yes, are great. Both are great. Ma'am, because you and your family has been
very instrumental in helping a lot of people in the city Yeah. with the medical services you've been providing. Now you're coming up with more hospitals and chain of hospitals. Yes. Ma'am, there was a quote which people used to say earlier that doctors are gods. Hmm. It changed with times when people started saying doctors are professionals. Ma'am, what do you see? How do you see this? These quotes changing. Quotes, you cannot say it is changing. Because when it comes to life, कि अब हमें पता चल रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप कहीं और नहीं जाते, आप डॉक्टर के पास ही आते हो. जी. चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो, और उस टाइम पे जो भी डॉक्टर आपकी हेल्प करता है वो आपके लिए गॉड ही होता है. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड, वी ऑल्सो हैव टू अर्न, वी ऑल्सो हैव टू पे टैक्सेस. हमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डिस्काउंट नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, कुछ भी नहीं है. We have to run a hospital, we have to pay 35 different kind of taxes every year. एंड इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बहुत पैसे लेते हैं, ऑल दैट शुड नॉट बी टेकन. सेकेंडली, हमें अंडर जो आपने सुना होगा कि कोर्ट केसेस होती है काफी सारी डॉक्टर्स के ऊपर, जो पहले नहीं हुआ करती थी. वी कम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. सो द पेशेंट बिकम्स अ कंज्यूमर एंड दैट वे वी बिकम प्रोफेशनल. Ma'am, you are also planning to start, or you've already you're working on a concept where Ayurveda and what do you call it, allopathy works together. Ma'am, what's that format of working? Yeah, see, we have been running an Ayurvedic hospital for past 37 years now. And there is side by side there's an allopathy hospital also. Right. Now Ayurveda itself has some surgical procedures जो कि इतने सालों से मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर धनराज कवकर has been doing along with allopathy. Now when I came to the field, I have seen कि इतना सारा patient, what happens, डॉक्टर अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है हमारे इंडिया में. लाइक अगर आप यूएस में जाना चाहो, आपको स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए 3 to 4 months का वेटिंग रुकना पड़ता है. बिल्कुल हाँ. सच्चा. और यहाँ पर एक स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहा, आपको 10 मिल जाएंगे. बिल्कुल. एंड पीपल कीप ऑन डॉक्टर शॉपिंग. और यहाँ पर डॉक्टर को दिखाना कंपेरेटिवली सस्ता है. बहुत सस्ता. वहाँ बहुत महंगा है. बहुत सस्ता जी, है. जी. और लोग देखना भी चाहते हैं जी. और सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं. जी. इसमें क्या, अगर हम इनफर्टिलिटी टॉपिक ले जी. तो इनफर्टिलिटी आप जानते बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चीज हो जाती जी. है. जब आपके 10 years ऑफ मैरिज है, 15 years ऑफ मैरिज है, और अपने अभी तक नियरली जब तक पेशेंट हमारे पास आते हैं 5 से 6 लाख रुपए खर्च करके आ जाते हैं. बिल्कुल. उनके 3 से 4 IVF साइकिल्स हो जाते हैं. जी. उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है. जी. बट व्हेन वी लुक फ्रॉम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, इनका जो प्रॉब्लम होता है, पैथोलॉजी जो होता है, वो एकदम अलग पार्ट से होता है. जी. जिसको हम आयुर्वेदिक वे से टैकल कर सकते हैं. और जो जैसे कह सकते हैं कि जो यूट्रस सोया हुआ है, जो ओवरी सोया हुआ है, जो एग प्रोड्यूस नहीं कर रही है, जो बच्चा नहीं ले पा रहे हैं, उसको आयुर्वेदिक वे से हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं. एंड देन यू कैन ऐड ऑन एन IVF ट्रीटमेंट. ओके. एंड देन गिव्स द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स, जिसमें आपका टाइम सेविंग हो जाता है, आपका पेशेंट का लाइफ बढ़ता है, और आपका कॉस्ट कटिंग भी होता है. मैम, इतना सारा वक्त आप पेशेंट्स को देती हैं, इतना सारा वक्त आप हॉस्पिटल को देती हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो विवाह से पहले कर लेती थी और अब नहीं कर पाती है? रीडिंग बुक्स. वक्त नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं. किस किस्म की किताबें पढ़ना पसंद करती हैं मैम? फिक्शंस मुझे पहले बहुत पसंद हुआ करते थे. आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ रॉबिन कुक. एंड देन ऑल सॉर्ट्स ऑफ बुक. फिर तो स्टार्टेड विद that a monk who sold his Ferrari, like those. Okay. अभी I don't have time. मैम, वक्त के साथ समाज में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं, जिसमें से एक कि हम देख रहे हैं कि द नंबर ऑफ डिवोर्सेज आर इंक्रीजिंग. सो द फैमिली कोर्ट हैव सडनली स्टार्टेड बिकमिंग वेरी बिजी. पहले बहुत कम लोग डिवोर्स के बारे में सोचते थे. मैम, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लास्ट स्टेज वाली चीज होती थी, लेकिन अब डिवोर्सेज आर इंक्रीजिंग रैपिडली. क्या रीजन सोचती हैं आप, क्या रीजन हो सकता है? बहुत अच्छा किया आपने पूछा मुझसे. Whenever a patient, जैसे एक लेडी है जो अपनी टीनेज डॉटर को, जो पहली बार उसको मेंस्ट्रुअस स्टार्ट होते हैं, कि अब उसको पहली बार पीरियड आया है या नहीं आया है, इस एज में मेरे पास लेकर आते हैं,
उनको हमेशा एक चीज़ बताती हूँ कि आप अपनी बेटी को डेफिनेटली करियर ओरिएंटेड बनाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए, उसको सैलरी उसका अपना मिले या अपनी तरफ से वो खुद सर्वाइव कर सके, इतना बनाइए। बट जो फैमिली वैल्यूज है उसको बिल्कुल ना भूले जी कि उसका पढ़ाई हो रहा है तो वो और कुछ नहीं करेगी, उसको खाना बनाना नहीं आएगा, या फिर अगर कोई बॉय आता है तो आप उनको बताइए कि आप इनको भी खाना बनाना सिखाइए, है ना। क्योंकि हम जो है एक ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं। जी हमारे पेरेंट्स फैमिली को लेकर चलते थे, लेकिन हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। जी इसमें जो फैमिली था, लाइक एक शादी हो जाए, सिंपली एक शादी हो जाता है, इट इज एक्सपेक्टेड कि वाइफ विल कुक एंड हस्बैंड विल अर्न। जी बट अभी ऐसा है कि वाइफ ही ऐसी चाहते हैं कि वो अर्निंग रहे, बिल्कुल, है ना। तो अगर आप अर्निंग वाइफ चाहते हो तो आपको भी कुकिंग आना चाहिए, अगर वो लाइक म्यूचुअल होना चाहिए हर चीज। लेकिन ये नहीं हो पाता है, ईगोज आ जाते हैं, मेरी बेटी ने इतना पढ़ा है, मेरे बेटे ने वो किया है, और फिर फैमिलीज काफी ज्यादा, एंड देन बहुत ज्यादा हम देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स या डिस्टेंट रिलेशनशिप्स या जी। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स, जी जिसमें कि जो बच्चे अभी हम देखते हैं, टीनेज स्पेशली, दे डोंट बिलीव इन रिलेशनशिप्स। दैट इज द मेन थिंग व्हाट आई फील। जो एक सर्टन एज में आने के बाद वो तुरंत में रिश्तों को तोड़ने में Exactly. विश्वास कर लेता और है। बहुत एक्सपेरिमेंटल जनरेशन है, जो दिखता है वो करना चाहते हैं। जी। हाइकिंग देखा, हाइकिंग कर लिया, जी। लिव इन देखा, लिव इन कर लिया, जी सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, बट जो वैल्यूज है वो नहीं करना चाहते। मैम, जो लोग ये कहते हैं कि बस एक लाइफ है, इसको पूरा जी लें, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? जरूर जियो, बट लाइफ बहुत लंबी है, हम्म। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जियो। मैम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिंगल मदर्स? योर ओपिनियन? इट्स ओके, इट्स ओके। Ma'am, you have helped people with normal delivery, cesarean, also IVF, with definitely help of Ayurveda and allopathy also. Ma'am, what do you think about child adoption, ma'am? इट शुड बी लाइक व्हाट आई कैन से, अगर बहुत ही ऐसा है कि समटाइम्स यू हैव टू से कि IVF नहीं हो सकता है। आता है कैसा पॉइंट? हाँ आता है, बिल्कुल आता है। दैट टाइम हम बोलते हैं कि आप जरूर अडॉप्शन के लिए जाइए। चाइल्ड जो है ऑफन यू कैन से, जी या कोई भी रीजन से बच्चा किसी भी अनाथ आश्रम में है, यू कैन गिव हिम अ बेटर लाइफ। सो अडॉप्शन डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन, अ बेस्ट ऑप्शन। मैम, जैसी प्लान की थी लाइफ वैसे जा रही है, एक्सेप्ट रीडिंग नहीं हो पा रही, लेकिन बाकी सब चीजें हो पा रही हैं, हाँ, है ना? रीडिंग के अलावा बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कर रहे हैं, जो हो रही है, हाँ जी। है ना? बट मैम, व्हाट्स द ड्रीम? डॉक्टर उज्ज्वला गहुकर का ड्रीम क्या है? my dream to cater those people, especially the girls who are helpless, adolescent girls, जो अपनी बातें पूरी नहीं बता सकते हैं, जिनको सुनना भी नहीं चाहते हैं, जो बता भी नहीं पाते हैं, जी उनको सुनना, उनकी प्रॉब्लम्स देखना और उन्हें हेल्प करना, दैट इज माय फर्स्ट। और सेकेंडली उन्हें फैमिली वैल्यूज सिखाना, कल्चर सिखाना। कल्चर का मतलब ये नहीं कि रोज हाथ जोड़ो, पूजा करो, खाना बनाओ, बच्चे पैदा करो। इट्स नॉट आवर कल्चर, इट इज वे डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग। आवर कल्चर टीचेस अस डिसिप्लिन ऑफ लाइफ एंड वी शुड ऑल हैव दैट डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। उस डिसिप्लिन के साथ आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। दिस विल बी माय ड्रीम। मैम, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, जो हस्बैंड होता है वो वाइफ से रोज कुछ ना कुछ सीखता है, यानी कि डॉक्टर गहुकर, डॉक्टर मिसेस गहुकर से रोज कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैम, आप गहुकर सर से क्या सीखती हैं? व्हाट हैव यू लर्न? पेशेंस। पेशेंट मतलब वो नंबर ऑफ पेशेंट? पेशेंस। ये आपसे मैं पूछ सकता हूँ इसलिए क्योंकि आप डॉक्टर है ना, तो इसीलिए। हाँ। तो पेशेंस इज लाइक, आप किस तरह से आप पेशेंट रह सकते हैं? हाँ, माय हस्बैंड इज एन एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक ऐसी पोस्ट पर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, ही इज द ओनली एलिजिबल पर्सन इस पोस्ट के लिए। उन्होंने एक PGI चंडीगढ़, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया और वर्ल्ड का, जी वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ही सेट अ बेंचमार्क, इज अ यूनिवर्सिटी टॉपर एंड नाउ हैंडलिंग GMC नागपुर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर। और जो मैं देखती हूँ, उनको डीन
लेवल या क्लास 1 ऑफिसर से लेकर क्लास 4 जो होते हैं सबसे डील करना पड़ता है जी। स्टिल ही कम्स बैक होम स्माइलिंग फेस, गिविंग टाइम टू हिज चाइल्ड, होम, फैमिली, वी हैव अ जॉइंट फैमिली, सबको टाइम देना, सबको लेके चलना, सबको साथ रखना, ये मैं उनसे सीखती हूँ। मैम अगर ये मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया डॉक्टर उज्ज्वला गहुकर, उसके नीचे मैम ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा कोट, ऐसी कौन सी चीज लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? ये बात मेरे हस्बैंड के लैपटॉप में लिखी होती है, जो हमारा एक कह सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम नथिंग एंड स्टॉप फॉर नथिंग। स्टार्ट फ्रॉम नथिंग एंड स्टॉप फॉर नथिंग। थोड़ा सा विस्तारित तौर पे बताएं, क्या कहना चाहती हैं? जैसे हम लोग हमेशा एक क्रिएटिव वर्ल्ड में रहते हैं। आपने देखा इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, हमारा एक फर्म है विच इज इंजीनियरिंग फर्म, जिसमें हम आयुर्वेदिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। ऐसा फर्म आज तक किसी डॉक्टर ने बनाया नहीं था जी। उसके बाद हमारा अपना फार्मेसी है, और फिर आप हमारा अगर शंकरपुर का हॉस्पिटल देखते हैं, इट इज वेरी 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 इको फ्रेंडली एंड देन इट इज इन द लव ऑफ द नेचर। और उसको जिस तरह से हमने बनाया है वैसा कहीं नहीं था। ये जो हॉस्पिटल है, जो मैं बता रही हूँ आपको, 37 ईयर्स से रनिंग है, ऐसा भी हॉस्पिटल सेंट्रल इंडिया क्या इंडिया में भी नहीं था। So we started what such things from nothing, and now we want to deliver such things to pan India, pan world. So we want to stop for nothing. We want to go global. सुपर मैम, ये पूरा इंटरव्यू मैम स्टार्ट भी करना पड़ा और स्टॉप भी करना पड़ रहा है लेकिन मैम आपकी जर्नी और आप जिस तरह से इंस्पायर करती हैं मैम, उम्मीद है कि ये कहीं स्टॉप कभी ना हो, आप ऐसे ही हमें इंस्पायर करती रहें और आप ऐसी ही कोशिशें जो आप कर रही हैं वो आप करती रहें। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Namaste. डॉक्टर उज्ज्वला गहुकर मैम से बात हुई, मुलाकात हुई, व्हाट अ पर्सनालिटी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बहुत समय के बाद एक ऐसा विमेन ऑफ द ईयर का एपिसोड हुआ जो इतना खूबसूरत हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हम विमेन ऑफ द ईयर एपिसोड में या राज की बात करें किसी भी एपिसोड में, हम जनरली कभी सवाल बताते नहीं हैं, तो बहुत रैपिड फायर सवाल होते हैं और जवाब भी जब अच्छे मिल जाएं तो बड़ी खुशी होती है। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी ये शो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये शो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ ये बात को बिल्कुल जहन में रखिएगा कि दो बातें जो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा टेक अवे है शो का, जो डॉक्टर उज्ज्वला मैम की जो जर्नी है वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छी जर्नी है, लेकिन साथ ही साथ उनकी दो मुख्य बातें जो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मेरे जहन में रहेगी एंड टॉप ऑफ द माइंड, एंड दैट इज वन कि लाइफ एक ही बार मिली है, उसको आप जिए बट रिस्पॉन्सिबली जिए, बिकॉज लाइफ बहुत लंबी है। हम ये सोच के आज सब कुछ खा पी लेते हैं, ये सोच के कि कल पता नहीं हो या ना हो, पर कल होगा इस पे भी तो हम विश्वास रख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि लाइफ बहुत लंबी है तो रिस्पॉन्सिबली जीना चाहिए। और दूसरी और बड़ी मुख्य बात जो उनका कोट है, आई थिंक दैट कोट इज वन कोट आई विल ऑल्सो रिमेंबर, दैट स्टार्ट फ्रॉम नथिंग एंड स्टॉप फॉर नथिंग। तो आप भी जिंदगी में कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ये तो आप तय कर लीजिए कि जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जब तक मिलेगा नहीं तब तक आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। हमारे सामने कई हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर लोगों ने कुछ नहीं से शुरुआत की थी और आज वो कुछ बनकर बैठे हैं, और वो भी आज रुके नहीं है ना। तो कोई भी चीज आपको अगर रोकती है तो उसके लिए मत रुकिए, अपना लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य में आगे बढ़िए। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो अपने बड़े भाई बहनों के साथ बड़ा हंसती खेलती मुस्कुराती है, लेकिन जीवन में वो सब हासिल करती है जिसके वो सपने देखती है, तो समझिए वो डॉक्टर उज्ज्वला बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।